and my dear students. Today we will continue infrared spectroscopy. The infrared spectroscopy based on vibrations. We know very well about the vibrations in the molecules, atom and atoms. The bond, it's similar to spring. Therefore, the vibrations there in a molecules between the its atoms. Okay, so today we will continue the vibrations after the completion of energy of vibrations, the calculations of the equation of the vibrational frequency in the form of wave number and then in the form of energy, and we already discussed about harmonic oscillation and harmonic oscillation, because we will not briefly but uh, it is totally we'll discuss here about the IR spectroscopy, because we will doing in the NET examinations, also in the first grade examinations, there are lot of questions. Many questions are arises. Many questions are asked about the spectroscope related. Therefore, we will continue the spectroscopy is related to vibrations. Vibrations is energy is related to infrared radiation range. The infrared radiation range we will already discuss about. Therefore, this energy is higher than rotational, higher than radio frequency. Okay, so therefore we will continue here after the harmonic oscillation after the anharmonic oscillations of the atoms in the molecules, because all the active molecules, active IRs, we will already discuss. If have the dipole moment, it separate its charge. Therefore, this became is IR active. The similar atom are joined together like this. We already discussed. This is not IR active, but the HCl is IR active. We are already discussed about this. Okay, we will continue. Today we will study mode of vibrations. वाइब्रेशन तरीके कौन किस प्रकार के वाइब्रेशंस हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके एटम के बीच में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मोड ऑफ वाइब्रेशन से पहले हम बात करें कि जो भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो एटम होते हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं. तो उस वाइब्रेशंस में किस प्रकार के वाइब्रेशंस हैं विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द सेंट्रल एटम. ओके, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द सेंट्रल एटम, two types of vibrational modes are there. Therefore, stretching and bending we already discussed in second year, but we will discuss here because we are doing lot of questions about stretching, bending, range in the centimeter inverse, vibrational frequency. So which one have the stretching or which one has the bending frequency, you know about that. Therefore, we will discuss here about the vibrational modes. Okay, the vibrational mode is there. We will continue here. Therefore, चलते हैं. हमने जो है पहले भी बात कर ली थी कि जो टू इम्पोर्टेंट जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के बारे में देखते हैं. तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग क्यों पढ़ रही है वो मैंने बता दिया है. तो देखिए, द सेंट्रल एटम इज देयर एंड एक्सिस ऑफ दिस. ठीक है, द अबाउट द एक्सिस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम्स द बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज. इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो स्ट्रेचिंग अगर वाइब्रेशन मोड को देखें तो बॉन्ड एंगल इस प्रकार से होना चाहिए कि जो आपके दो मॉलिक्यूल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन दो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सिस के रेस्पेक्ट जो एटम की अरेंजमेंट है
वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाइब्रेट इस प्रकार से कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये आटम जो है, इसके रेस्पेक्ट के अंदर आपके इलोवेटेड हो रहा है और ये आपका जो है छोटा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ही अगर आगे बढ़ते हैं, उसकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है पहले की तुलना में, एक साथ इंक्रीज हो रही है, एक साथ घट रही है, इस प्रकार से एक रेस्पेक्ट के अंदर, तो एक साथ ही ये इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ ही घट रहे हैं, दोनों एक बॉन्ड एक साथ ही इंक्रीज और घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा है, एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस जो है वो एक जगह ही कर रहा है। तो इस प्रकार के वाइब्रेशंस कहलाते हैं हमारे क्या, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ओके, बट इन केस ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस, therefore the change between the bond angle because and the atom arrangement with respect to axis it also change, because देखिए इस प्रकार से ये है, ये आपस में जो चेंज करेगा, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं, इस प्रकार से जो होते हैं, this is called bending vibrations. It is called bending vibrations. Okay, the bending vibrations is there in which the molecules centralized with two atoms, the bond angle also change in the bending, the bond angle does not change in the stretching. Okay, that's okay. आगे चलते हैं। The stretching vibrations divided into two parts also. स्ट्रेचिंग को कौन से, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में किस वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, या सेंटीमीटर इनवर्स में देखें, सेंटीमीटर इनवर्स में किसके लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवश्यकता है या किसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, कौन सा वाइब्रेशन ज़्यादा एनर्जी लेगा, बताइए, स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। आप देखिए दो मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक सेंटर एटम है, इसे दो आपके एटम और जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप, और मान लीजिए ग्रुप भी जुड़ सकता है, तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये मान लीजिए इसके बॉन्ड, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में एक बॉन्ड है, बॉन्ड स्प्रिंग के जैसा है, अगर उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको एक्सटेंशन करते हैं, तो कंप्रेस करते हैं, इलोवेटेड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस प्रकार से चलेगा, इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स आपके वाइब्रेशन होंगे, दोनों एक साथ होंगे। तो ये जो चीज़ है वाइब्रेशंस, इस कंडीशंस के अंदर हमें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बजाय एक स्प्रिंग को आप हिला दीजिए इस प्रकार से, वो हिलती रहेगी, वाइब्रेशन उसको बिल्कुल मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना, उसको इलोवेट करने में एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं, उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो है हायर रेंज पे आती है, उसी मॉलिक्यूल की, उसी एटम के रेस्पेक्ट में, उसी ग्रुप के रेस्पेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और उसी ऑब्जेक्ट की बेंडिंग जो है वो लोअर एनर्जी पे आती है। इसलिए बेंडिंग जो है लगभग 1000 से नीचे 800-700 पे आती है। लेकिन जैसे स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, स्ट्रेचिंग हमारी जो है 1200 के ऊपर, 1600, 1700, 1800 जो भी है, जो हम मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जब हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इज हैव हायर एनर्जी देन बेंडिंग। Okay, that's all. Then the stretching is divided into two parts. That is called, आगे समझ में, the stretching is divided into also two parts. It is called symmetric और asymmetric. Asymmetric stretching वाइब्रेशंस और ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि एक अगर एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में इस प्रकार से दो एटम एक स्प्रिंग के जैसे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और हम जो देख रहे हैं ये, तो सिमेट्रिक का मतलब ये तो दोनों ही इलेवेटेड हो, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द सेंटर एटम। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट के अंदर ये दोनों जो है या तो एक साथ इलोवेटेड हो रहे हैं, एक साथ इलोवेटेड हो रहे हैं, या दोनों ही एक साथ शॉर्टर हो रहे हैं, एक साथ कंप्रेस हो रहे हैं। तो टुगेदर जो आपका दोनों मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन चल रहा है उसे बोलते हैं सिमेट्रिकली। ओके, एसिमेट्रिकली इन द सेंस ऑफ एसिमेट्रिकली, द एसिमेट्रिकल इज दैट in which
the one atom is compressed and one atom of the bond is elongated. That is asymmetric stretching. Asymmetric stretching और ये symmetric stretching. ओके, आया समझ में? इस प्रकार से सिमेट्री को स्ट्रेचिंग में दो भागों में डिवाइड करते हैं और दो भागों में डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें दो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है, तो कौन सी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए? विच वन हैज़ द मोर एनर्जी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग? बताइए, कोई यूनिफॉर्म में कोई वर्क किया जाए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, कोई यूनिफॉर्म में वर्क किया जाए वो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी उसको ज़्यादा चाहिए होती है जो अनयूनिफॉर्म में वर्क किया जाता है, इसलिए एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है बजाय सिमेट्रिक के. ओके, देयर इज टू पार्ट. अब चलते हैं बेंडिंग के ऊपर. द बेंडिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख रहे हैं इस प्रकार से, इसको कितने भागों में इसको डिवाइड किया? 4 भागों में देख रहे हैं. पहला है सीजरिंग, दूसरा है ट्विस्टिंग, रॉकिंग, और उसके बाद में आता है क्या? रॉकिंग के बाद ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के बाद में ये, उसके बाद में आता है अपना बैगिंग. ठीक है, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया. 4 भागों में डिवाइड करने के लिए हम देख रहे हैं कौन कौन सा है. तो है पहला है सीजरिंग, सीजिंग वाइब्रेशन. सीजिंग वाइब्रेशन किस प्रकार से होते हैं उसको हम देख लेते हैं. तो एक इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से एटम जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और वो जो है वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. सीजिंग का मतलब कैंची की जैसे, कैंची का मतलब इस प्रकार से ये अंदर जाएंगे दोनों या फिर दोनों बाहर आएंगे. जिस प्रकार से मैंने बताया था वाइब्रेशंस, ये दोनों वाइब्रेशंस हैं और हम दोनों देख रहे हैं इस प्रकार से. तो इस प्रकार से देखो ये जा रहा है कैंची के जैसे काट, फिर वापस जा रहा है कैंची, इस प्रकार से कैंची चलती है, तो वो उस वाइब्रेशन को बोलते हैं हम सीजरिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशन. ओके, सेकंड नंबर का देखते हैं हम. सेकंड नंबर का है अपना रॉकिंग. रॉकिंग वाइब्रेशंस. रॉकिंग वाइब्रेशंस क्या हो गई? रॉकिंग वाइब्रेशंस इस प्रकार से है कि एक मॉलिक्यूल दो एटम इस प्रकार जुड़े हुए हैं. रॉकिंग में क्या होगा कि एक तो हमारे पास इस प्रकार से जो है रॉकिंग करें, ये इधर जाए, दोनों एक साथ इस प्रकार से जा रहे हैं. तो ये रॉकिंग का मतलब इस प्रकार से हमें मिलता है कि दोनों ही जो है इस प्रकार से जा रहे हैं. दिस इज रॉकिंग. रॉकिंग मतलब अपन जिस प्रकार से चल रहे हैं इस प्रकार से रॉकिंग, तो वो रॉकिंग वाइब्रेशंस कहलाते हैं. और इस प्रकार से हमारे आते हैं वैगिंग और ट्विस्टिंग. तो आपका जो है ट्विस्टिंग में क्या होगा, पहले वैगिंग देख ले. वैगिंग वाइब्रेशंस में, वैगिंग वाइब्रेशंस जो है यानी एक आपका इस प्रकार से मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स जुड़े हुए हैं. दोनों एटम्स का अगर एस्पेक्ट में देखें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि वैगिंग का मतलब है दोनों ही या तो डाउन जाए या दोनों ही अप जाए. ठीक है ना? इस प्रकार से दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स जो हैं वो किस प्रकार से जाए, देखिए कि इस प्रकार से जो है दोनों ही, एक मिनट डिस्कस किया कि ये दोनों ही जो है, ये दोनों ही जो है इस प्रकार से जा रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल वैगिंग के अंदर. वैगिंग का मतलब इस प्रकार से दोनों जो हैं वो प्लेन के अंदर की तरफ दोनों एक साथ दोनों बाहर, दोनों एक साथ दोनों बाहर, इस प्रकार पेंडुलम चलता है. दोनों इस प्रकार से तो वैगिंग हो गया. ठीक है, और रॉकिंग क्या हो गया? इस प्रकार से रॉकिंग. और ये जो सीजरिंग है, सीजरिंग का मतलब अंदर और बाहर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं. ठीक है, वैगिंग का आपको समझ में आ गया, अंदर और बाहर, ये अंदर दोनों अंदर जा रहे हैं या दोनों बाहर जा रहे हैं, दिस इज वैगिंग. और अब आता है ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग के अंदर हम देखते हैं. ट्विस्टिंग के अंदर हम बात करें तो किस प्रकार से मिलता है वो देखें. तो ट्विस्टिंग में है कि एक तो आपका अंदर जाए, एक बाहर आए, एक इस प्रकार से जो है इन द प्लेन के अंदर की तरफ, प्लेन के बाहर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ, प्लेन के बाहर की तरफ, दोनों जो है एक दूसरे ट्विस्टेड हो रहे हैं इस प्रकार से. ठीक है ना, अंदर बाहर. तो ये कहलाता है हमारा ट्विस्टिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस. तो इस प्रकार से हमने मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में देखा. 2 प्रकार के मोड्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बाद में हम बात करते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीडम, एनर्जी ऑफ फ्रीडम के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है,
तो वो उसके बाद में हम देखते हैं क्या कि किस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पहले उसको बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कि एक आपका मॉलिक्यूल है, हम बात कर रहे हैं, नया लेके चल रहे हैं, उस नया लेके चल उसको उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालने का तरीका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, ठीक है। और इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, या जो बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स, वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं, उस एटम का हमें लोकेशन पता लगानी है कि ये एटम इस मॉलिक्यूल के एक एटम दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में कितना घूम रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, कितना उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी है, कितनी उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है, कितनी उसका रोटेशनल एनर्जी है। तो उसकी लोकेशन को पता लगाना, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है एक, इस प्रकार से आपके ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से अलग अलग एटम्स में इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें अपन देख रहे हैं, इसके अंदर एक सेंटर एटम के रेस्पेक्ट में या एक दूसरे के एटम के रेस्पेक्ट के अंदर उस एक एटम की दूसरे एटम के रेस्पेक्ट के अंदर क्या लोकेशन है, उसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसको पता लगाना कि उस लोकेशन पर वो वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, उसके ट्रांसलेशनल वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, उसको वाइब्रेशनल जो एनर्जी है, वाइब्रेशनल जो रोटेशन है, वो कितने वाइब्रेशनल जो है वो कितने प्रकार के, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने प्रकार की, इसको बारे में देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, वो एटम का दूसरे एटम के रेस्पेक्ट के अंदर लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को पता लगाने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, उन सब का टोटल जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम आगे पढ़ते हैं दूसरे लेक्चर में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल रहे हैं कि कितने प्रकार के वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो 3 प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रकार के कितने होंगे, हाउ मेनी टाइप्स। तो हाउ मेनी टाइप्स दैट 3 प्रकार के, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होगा वो रोटेशन भी करता है उस एनर्जी पर, उसके अंदर जो वाइब्रेशनल भी होंगे और उसके अंदर ट्रांसलेशन भी होंगे। तो हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला जनरेट करेंगे, और उस फॉर्मूले को हम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के दोनों के लिए देखेंगे, और उससे पता चल जाएगा कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर बात करेंगे। ओके।